I've started, ma'am. Yeah, thank you. Good evening, everyone, and welcome to the another turn of Turning Point. Turning Point has taken a new turn now, especially because this is COVID period at peak, and we want our students, to be motivated, be de-stressed, and I think Turning Point is going to contribute a lot in this. Also, Abhinand sir is at the fulcrum of this entire webinar series. He said COVID period is over, especially for IU it is over. Now come back to Turning Point. So Turning Point is adding dimensions in various ways, not only enriching knowledge, but also adding, how to deal with crisis also, how experienced people with their wisdom, with their knowledge, how they have survived in the difficult times. This also will pass away though, but then we will learn the tips, no matter whether it is time management or setting the priorities. But then we have various ways to teach you the life skills, because education is not limited to only degree or job, but it is beyond that, that how to live life happily. So with this, I invite now Abhinand sir for setting the objective as per our norm. Sir, unmute yourself, sir, please. Hello. Yeah, sorry. Good evening, everybody. And first of all, I would like to wish all the students a very stay healthy life, and also best of luck for your vivas and exam. I hope you are creating a good atmosphere in the house, remaining happy, learning in this COVID pretty bad time. I have seen through a lot of calls which I have been accepting to help people with oxygen, beds, even for medicine. We have been also asking that the remote areas have getting calls from probably Uttar Pradesh, Madhya Pradesh. Then we have been asking them if you are not getting Remdesivir. People are also switching over to our Sepsivac, getting cure also. But different phases are there. Somebody is getting cure, and after 15 days he is having a relapse. So there are a lot of things which is happening, but you have to keep yourself positive. Things are going to turn into good shape. You are all going to get into a good world. We are all going to see the day of life, and then keep smiling so that you are getting motivated. And that's why, I've been asking with my colleagues, faculties, please keep yourself motivated, take care of yourself, and remain happy. That's more important. That's the turning point of life. And over to Pradeep ji, because he's going to teach about a very important topic, time and management. And time is critical. I've been talking to few of the friends for whom, the bad management has been time. And my past colleague in Apollo Hospital, I can tell you, they are running with a crucial time of time management. And we must be with them. They are going through a difficult time. We are with them. And for students, it's a learning thing. How we have to scale up. When we look at the per bed ratios in Western world, it is more like 30 or 70 per thousand. Here we are looking at 0.7. Somewhere India has to scale up. And that's where the young generation will come into picture. Thank you. Thank you, sir, for setting the objective. We are happy that we are connected with our deans also, because students are looking for a lot of motivation. And my team is again back supporting me. Sumit sir is there. I also acknowledge Harin sir and Gyan Chandra sir effort, So now before we invite Pradeep sir, the student body is there ready to introduce. And for that, I invite Devarsh from MSc Microbiology. Devarsh, you can unmute yourself. Hello, ma'am. Can I audible? Yeah. Okay. Hello, everyone. Very good evening to one and all present here. I am Deva Santarya. I am from MSc Semester 2, student of microbiology. It's a great pleasure for me to have the opportunity to introduce today's speaker, Mr. Pradeep Singh Rathur. Sir completed his graduation in zoology at Chhatrapati Savaji Maharaj University, Kanpur, and then post-graduation complete in botany at Kanpur University.
Sir, he's a performance coach, certified instructional designer, certified sales scale trainer, and certified behavior event interviewer. From only, he has served as a training management at Intas Pharmaceutical Companies and was also senior training manager at Zydus and Cadila. Experience of more than 10 years in sales and L&D in India's top pharmaceutical companies. And he is currently serving as a senior manager L&D at Cadila Pharmaceutical Limited. And today, sir is going to talk to us about time management and prioritization. Finally, we are grateful for his presence. Due to his presence, so I would like to welcome Pradeep sir. Thank you. Pradeep sir, it's all yours. Thank you so much. And you are one of the favorite speakers, from Kerala. Thank you so Yes. much. You have been, I'll say, time and attendance is always yours. Attention is yours. You always give me so much generously. So I'm so grateful to you. आप लोग हमेशा, see, आज की तारीख में सुनने वाले भी चाहिए, राइट? बोलने वाले भी काफी हैं, बट सुनने वाले भी चाहिए. और इतना प्यार मिलता है यहाँ से, इतना अच्छा हमको लगता है हर बार बात करके. हमको भी सी मोटिवेशंस आल्सो नीड मोटिवेशन. सो यहाँ पे हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको खुद को काफ़ी मोटिवेशन लगता है. एक अंदर का ट्रेनर सेटिस्फाई होता है. सो आई एम थैंकफुल टू इंद्रशील यूनिवर्सिटी फॉर एवरी सेशन विच आई टेक एंड एवरी टाइम आई ब्रिंग सम legend from Cadila Pharma. So it gives me a lot of satisfaction, which is over and above which I work as a trainer or the senior trainer in the L&D. So thank you so much for always giving this opportunity to me. I'm so thankful to all of you. Devarsh, thank you so much for giving wonderful introduction of mine. Devarsh reminded me of Amit Andharia. He was very good friend of mine from Bhavnagar. Very humble, kind person. He is doing extremely well. So Bhavnagar के दो चीजें फेमस हैं, आप जानते होंगे. So Yeah, sir, definitely. So thank you so much. Bharti madam is also from Bhavnagar. Okay. So thank you so much. उसको आपने जब अंधारिया मैंने पढ़ा तो मेरे को उसकी याद आ गई. Thanks for reminding me. So आज मैं करूँगा कॉल. ये कोरोना काल में मैं वही कर रहा हूँ पिछले काफी समय से. जो हमको याद आते हैं, जिनका हमको ध्यान आता है, पुराने, बहुत पुराने, 25 साल, 30 साल, 40 साल, एक फोन जरूर करते हैं उनको कि भाई क्या है, क्या कर रहे हो, ठीक हो क्या, और कुछ ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे कुछ हम कर सकें आपके लिए, उतना हम कर रहे हैं. सो इसके पहले कि हम अपना टॉपिक शुरू करें, आई थिंक कुछ हम बोलना चाहते हैं कोविड के बारे में, राइट? तो जो आजकल का टाइम चल रहा है, कोविड या कोरोना जो आजकल काल चल रहा है, जो सेकेंड वेव खास तौर पे आई है, वो हम काफ़ी सारे ग्रुप्स में हैं जिसमें डॉक्टर्स हैं. और मैं एक ऐसे स्कूल से आता हूँ जिसमें करीब 160 डॉक्टर्स हैं. 160 डॉक्टर्स आर देयर. दे आर इनटू ऑल दिस स्पेशलिटी. दे आर इनटू पल्मोनोलॉजी, मतलब जिसको चेस्ट फिजिशियन बोलते हैं, या कार्डियोलॉजी, राइट, और फिजिशियन, राइट, न्यूरोलॉजी, और ऑफ्थल्मोलॉजी जो आई स्पेशलिस्ट बोलते हैं हम नॉर्मली. बहुत सारे मैं उनके साथ में संपर्क में हूँ और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख रहा हूँ डेली का डेली. तो जो सेकेंड वेव हमारा रहा, तो दो चीज़ें हैं. सबसे पहली बात तो ये डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है. इतना डरना है कि अपने आप को खुद बचा के रखना है हर चीज़ से. अपनी इम्यूनिटी पे काम जितना कर सकते हैं आप, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जो मिलता खा लो, राइट. खाली पेट नहीं रहो. इसका सिद्धांत आप दो याद रखो. एक तो खाली पेट नहीं रहना है. आप घर से जब भी निकलते हो कुछ खा के निकलो, राइट. उपवास ऐसे टाइम पे नहीं करना है आपको. खाली पेट में वायरल लोड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर आपका जब पेट भरा हुआ होता है, पेट में कुछ, स्टमक में कुछ रहता है, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. तो आप एक चीज़ याद रखना कि हमको खाली पेट नहीं रहना है. कुछ ना कुछ खा के घर से निकलना है. कभी भी घर से निकलना है, आपका पेट में कुछ रहना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, आपको इम्यूनिटी के लिए जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसमें से जितनी खा सकते हो खाओ. क्या सही है क्या गलत, सभी कुछ सही है. खास तौर पे आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है खाने में. हम खुद बताते हैं हमने इतने दिनों में क्या खाया. तो हम लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोग अश्वगंधा खाते हैं, राइट. अश्वगंधा बहुत तरह से आता है. आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं और बहुत तरह से ले सकते हैं. साथ में हम लोग गिलोय लेते हैं. गिलोय भी बहुत तरह से आता है. उसका जूस आता है, टैबलेट्स आती हैं, हम लोग टैबलेट खाते हैं. विटामिन सी हम लोग रेगुलरली ले रहे हैं. विटामिन डी हम लोग वीकली वंस लेते हैं. हमारा कैल्सियरॉल ब्रांड आता है, 60 के आप हर हफ्ते ले सकते हैं. विटामिन सी में लिम्सी आती है मेजरली, जो आप सुबह शाम खा सकते हैं. कम से कम दिन में एक तो खा ही सकते हैं. आप जिंकोविट खा सकते हैं. जो हम खा रहे हैं वही बता रहे हैं, हम वो नहीं बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए.
जो हम खुद कर रहे हैं इतने दिनों से वो ही हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और भगवान की दया से मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अभी तक बचे हुए। तो इसलिए दैट इज़ वाई आई एम बीइंग सो पॉजिटिव ऑन दिस थिंग। सो दैट इज़ वाई आई कैन से कि जो हमने किया है शायद अगर आप करेंगे, आपके घर में आसपास के लोग करेंगे तो आप उससे सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप जिंकोविट खा सकते हैं, राइट। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसको फिश ऑयल हम नॉर्मली बोलते हैं, ऐसा देखा, ये जो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ साइंस के साथ बोल रहा हूँ, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, राइट, या कोई भी स्टैटिन जो लोग घर में खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स होते हैं, फैट लोअरिंग ड्रग्स होते हैं। और ये जो कोविड है ये फैट सॉल्युबल है, या उस इसलिए सोप से या उसको यूज़ करने से आसानी से चला जाता है। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड यूज़ करते हैं या फिश ऑयल यूज़ करते हैं तो जो कोविड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। विटामिन डी अगर आप हफ्ते में एक बार खाते हैं तो आपको कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है जिन पेशेंट्स में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा थी, मतलब सफिशिएंट लेवल था। तो उसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आप कभी टेस्ट कराते हैं तो अगर आपका 30 से ज़्यादा आपका आता है विटामिन D3, तो मतलब यू हैव अ ऑप्टिमल लेवल। 30 to 100 अगर आपका है नैनोग्राम पर ml, तो आपका नॉर्मल रेंज कहा जाएगा। अगर 20 to 30 है तो सब ऑप्टिमल है, राइट। ऑप्टिमल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 20 to 20 मैं बोलूँगा इनसफिशिएंट है, और इनसफिशिएंट है, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और 10 से अगर कम आपका आता है विटामिन डी, तो दिस इज सीवियर डिफिशिएंट, आपको इमीडिएटली या तो आपको इंजेक्शन स्टार्ट करनी चाहिए या आपको हैवी डोज से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप 3 चीज़ें याद रखिएगा, 0 से 10 इमीडिएट इंटेंशन, 10 to 20 आपको ड्रग्स स्टार्ट करना है, 20 to 30 आप एज ए प्रोफाइलेक्सिस खा सकते हो। बट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंडिया में 87% पेशेंट्स विटामिन डी डेफिशिएंट है, 87%। तो आप तो ये मान के ही चलो कि आप भी हो। तो 13% में वो लोग आते हैं जो बहुत सारी धूप में काम करते हैं, जो किसान हैं खासतौर पे, या जो लेबर्स हैं जो रोड पे काम करते हैं, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन D3 बनाने के लिए हमारा बॉडी पार्ट 75% एक्सपोज होना चाहिए सन के सामने, और जो कि दिन में कम से कम 1 घंटे कंटिन्यूसली होना चाहिए, तभी हम सफिशिएंट विटामिन D3 नॉर्मली बॉडी में बना सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उससे अच्छा है कि अगर वो नहीं कर सकते तो आप विटामिन D60K कैल्सिरॉल शैशे फॉर्म में भी आता है और टैबलेट भी उसका आता है, तो आप हर हफ्ते ले सकते हैं। तो विटामिन डी का सबसे बड़ा फायदा है कि अगर आपके बॉडी में विटामिन डी का लेवल सफिशिएंट है तो आप कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, आपके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन जो कम हो जाएंगे। ये कुछ चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम जब भी कहीं से आते हैं हमको लगता है कि हैवी एक्सपोजर हुआ होगा या वायरस का या ऐसा कुछ है, तो हम लोग जल नीति करते हैं। आप कहीं पढ़ लीजिएगा जल नीति के बारे में। जल नीति एक यौगिक क्रिया है, बहुत सुनने में मुश्किल लगती है लेकिन करने में उतनी आसान है। तो एक जल नीति पॉट आता है, उसके थ्रू आप जल नीति कर सकते हैं, राइट। और बहुत इजी है, बहुत आसान है। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लीजिए और एक नॉस्ट्रिल में आप पानी डालेंगे, दूसरे नॉस्ट्रिल से अपने आप ही निकल आएगा अगर अपने मुंह से सांस ले रहे हैं तो। सो ये कुछ टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, राइट। बाकी जो आपको सजेस्ट करते हैं स्टीम लेना है, ये लेना है, वो लेना है, वो तो आप करते ही रहिए। इसके अलावा आप सिम्टम्स ऑलरेडी जानते हैं कि अगर किसी को फीवर आता है और थोड़ा लंबे समय तक रहता है तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ टेस्ट। अगर आपको खांसी है या ऐसा कुछ है, सिम्टम्स सबको मालूम है, राइट। अगर आप चाहें तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके नॉर्मल सिम्टम और कोविड सिम्टम्स में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1, ठीक है। जब तक कि सिम्टम ज़्यादा नहीं होते हैं, लंबे समय तक नहीं होते हैं या ऐसा कुछ नहीं, तब तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमने बोला है आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, आप जितना कर सकते हो उतना करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया कि आपको अभी इस समय में क्या करना चाहिए। दूसरा, आप हमेशा जानते हैं बहुत दिनों से कहा जा रहा है मास्क पहनना है। अभी डबल मास्क पहन रहे हैं लोग, तो अंदर क्या करते हैं, सर्जिकल मास्क पहनते हैं, ऊपर से नॉर्मल कपड़े का मास्क पहनते हैं। तो आप अगर ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको आउटसाइड एक्सपोजर है, तो आप डबल मास्क पहनिए, अंदर सर्जिकल और ऊपर से कपड़े का मास्क पहनिए। अगर कोई नहीं भी है वहाँ पे, आप मान लो 2 गज 4 गज 6 गज नहीं पे भी है तो भी फैल सकता है। नाउ इट इज एरोसॉल कंटेमिनेटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू एरोसॉल। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके आने के पहले वहाँ पे कोई था तो भी आपको मास्क पहन के रखना है।
राइट। थोड़ा सा हम लापरवाही हम कर देते हैं या थोड़ा सा हम लापरवाह हो जाते हैं, हमसे थोड़ी सी असावधानी हो जाती है, देन वी सफर अ लॉट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉट ओनली वी सफर बट आवर फैमिली मेंबर्स आल्सो सफर। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दैट इज द सैड पार्ट ऑफ दिस, कि हमको मालूम नहीं, कई लोग घर से नहीं निकले फिर भी हो गया। क्यों हो गया? कोई बाहर से मिलने आया था, थोड़ा फ्रेंड था, तो हमने थोड़ा सा रिलैक्स होकर बात कर लिया या मास्क हटा के बात कर लिया। अगेन आई विल से कि ये समय वो नहीं है, ये बाद में सब हम करेंगे, हक करेंगे, राइट, मिलें जुलेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी कुछ समय के लिए सब गतिविधियां जितना हम रोक सकते हैं उतना हमको रोक देना चाहिए। तो ये कुछ कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं जो हमको हमेशा करने चाहिए। बाकी आपको मालूम ही है कि मास्क पहनना है या सैनिटाइज करना है। घर से आप कहीं से भी आते हैं, अगर 1 घंटे से ज़्यादा आप बाहर हैं तो आप आके जल नीति कीजिए, सारे कपड़े धुलने डाल दीजिए और आप खुद अच्छे से आप वॉश, अपने आप को स्नान कीजिए अच्छे से, उसके बाद ही किसी को आप मिलिए। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपको उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। फिर भी जब आप घर से निकलते हो तो ये सोच के निकलो कि हर कोई आदमी, जितने भी समाज में लोग हैं, वो सब हमको कोरोना लगाने के लिए ही खड़े हैं, ऐसे मान के चलना आप, तो आप सबसे दूर रहोगे। और जब एक बार आप घर पे आ जाते हो तो आप ऐसे मान के चलना कि नहीं, हमें नहीं हुआ है, हम एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ हैं, हमको कुछ नहीं होगा। तो आप दोनों तरह से आपको अपनी सोच बना के रखनी है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप नेगेटिव सोच के जाओगे तो नेगेटिविटी हमेशा आपकी इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज़ करेगी। तो जैसा अभिनंदन जी ने बोला, खुश रहना है। तो आप सबसे जो सब लोग सजेस्ट करते हैं कि न्यूज़ मत देखो, राइट, डरावनी चीज़ें मत देखो, या ये सब की इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आप ध्यान मत दो, ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाओ। अगर आपको डाउट है तो ऐसे किसी की आप बात सुनो जो रियल में मतलब उस बारे में जानता है या आपको जो डाउट्स क्लियर कर सकता है उस मामले में, तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहोगे तो आपको अच्छा रहेगा, राइट। फिर कुछ और चीज़ें आजकल चल रही हैं जो हमने कुछ पढ़ी थी, तो विच आई लाइक टू डिस्कस। एक म्यूकोर माइकोसिस आजकल बहुत चलन में है बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशंस और द बैड कंडीशंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। तो कई जगह पे हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई बराबर नहीं कर रहे हैं, पीपल डेवलप दी फंगल इन्फेक्शंस एंड डेथ्स आर अकरिंग बिकॉज ऑफ दिस फंगल इन्फेक्शन इज स्प्रेडिंग इन लाइफ। तो आपका अगर कोई एडमिट है आपके हॉस्पिटल में, आप किसी को मिलने जाते हो या आप किसी को देखते हो या किसी से आप बात कर सकते हो, तो उनके अगर नॉस्ट्रल्स के आसपास आपको छोटे से ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं तो ये अर्ली साइंस है म्यूकोरमाइकोसिस के या फंगल इन्फेक्शंस के। तो अगर आप ऐसा कुछ नोटिस करते हो तो, या कोई भी नोटिस करता है, तो ऑलवेज ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ डॉक्टर। अगर ये अर्ली स्टेज में म्यूकोरमाइकोसिस ट्रीट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको भी ऑक्सीजन लग रही प्रॉब्लम हो सकती है। गुजरात में ऐसे केसेस कम है, बट अभी इस बीच में कुछ केसेस बढ़े हैं कि पेशेंट ठीक हो गए, ऑक्सीजन लगना बंद हो गया, उसके बाद भी उनको कॉम्प्लिकेशंस आगे रीजंस ये फाइंड आउट हुए। म्यूकोरमाइकोसिस जो एक नया कॉन्सेप्ट है विच आई थॉट आई विल डिस्कस विद यू। प्रिकॉशन के लिए आपको चाहिए तो आप 3 दिन के गैप पे, मतलब डे 1 और डे 3 पे आप आइवरमैक्टिन भी ले सकते हो 0.2 मिलीग्राम आपके बॉडी वेट के हिसाब से। मतलब अगर आप 50 किलो के हो तो आप 10 मिलीग्राम ले सकते हो, आप 60 किलो के हो तो 12 मिलीग्राम की टैबलेट एक ले सकते हो खाने के 1 घंटे पहले, राइट। तो खाने के 1 घंटे पहले आप ले लीजिए आइवरमैक्टिन 0.2 मिलीग्राम एज ए प्रोफिलैक्सिस, जो आपको ज़रूर वायरल लोड होने से बचाएगी। तो आप एक आज ले लो, मान लो फॉर एग्जांपल, एक आप 72 घंटे के अंदर ले लेना, मतलब 3rd डे। सो आइवरमैक्टिन ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, खासतौर पे बांग्लादेश में उसके काफ़ी अच्छे ट्रेंड्स निकल के आए थे। बांग्लादेश में इसका स्प्रेड काफ़ी हद तक रोका था। वहाँ जो डॉक्टर यूसुफ थे, उन्होंने, यूसुफ ख्वाजा आई गेस उनका नाम था। सो ये कुछ चीज़ें हैं कोविड के बारे में जो मतलब बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप डर जाइए, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को चीयर अप करो, जो कर सकते हो वो करो, जो लोगों ने किया है वो आप करो, उसके पीछे कुछ साइंस है इसके लिए आपको बताया जा रहा है, तो उससे करोगे तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्सीन अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर लगवाओ, राइट। कैसे भी करके लगवाओ, कहीं पे भी लगवाओ, जहाँ लग रही लगवाओ, सारी वैक्सीन अच्छी हैं। जितने भी हमारे म्यूटेंट स्ट्रेन आ रहे हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मीडिया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मीडिया यूनिवर्सिटी की उपज है। जो भी हमारे डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, जितने भी म्यूटेंट आप लगा लो, सारी की सारी वैक्सीन उसके अगेंस्ट में एक्टिव है। तो आप वैक्सीन ज़रूर लगाइए, जहाँ पे भी आपको जो भी वैक्सीन लग रही, कोविशील्ड भी उतनी इफेक्टिव है जितनी कोवैक्सीन, और जो नई वाली आई है स्पुतनिक, वो भी उतनी इफेक्टिव। आपको जो भी लगती है और दोनों डोज लगाइए, प्राइम जो आपको प्रॉपर टाइम इंटरवल बताया गया उसी टाइम पे आप उसको लगाइए। तो सारी की सारी हमारी वैक्सीन सभी स्ट्रेन के अगेंस्ट में बहुत सारी एक्टिव हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, जिन्होंने नहीं लगवाई है, उन दोनों में केसेस में कॉम्प्लिकेशंस में और मोर्टेलिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
तो आप मान के चलो, ऐसा नहीं कि लगने से कोविड नहीं हो सकता है, राइट। अपने को प्रिकॉशन सारी रखनी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम है। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम छूट ले लें और हम घूमने लगे और सोच लें सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऐसा नहीं। वो तो हमको करना ही है। ये इन्फेक्शन डिपेंड करता है कितना ज़्यादा वायरल लोड हम पे है, कितना ज़्यादा हमने एक्सपोजर लिया है, कितना ज़्यादा हमने वायरस इनहेल किया। तो जितना आप कम इनहेल करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो जैसे आप बच सकते हो, जितना आप बच सकते हो उतना बचने की कोशिश करो। बाकी खुश रहो, प्रसन्न रहो, राइट। ये समय अभी धीरे धीरे प्लाट्यू मतलब फ्लैट होने लगा है नंबर, और ऐसा ही अगर रहा या हम लोगों ने जैसा चाहा वैसे रखा तो ये नंबर जरूर कम होगा। गवर्नमेंट को कंप्लेन करने की बजाय अगर हम खुद के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो कुछ होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऐसा बोलता है कि जो हमारे हाथ में है वो हमें करना है, राइट। गवर्नमेंट के लिए हम एक डेटा है, या हमारे फैमिली मेंबर्स एक डेटा, हम एक 135 करोड़ की आबादी में से हम एक आदमी हैं, लेकिन हमारी फैमिली के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारी फैमिली के लिए हम द प्रदीप हैं, गवर्नमेंट के लिए हम वन ऑफ द प्रदीप हैं। वो आप हमेशा याद रखिएगा। ब्लेम हम बाद में कर लेंगे, वो सब हम कर लेंगे, वो जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब हम देखेंगे। पहले हमको अपना ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जितना हम ध्यान रख सकते हैं उतना हमको खुद का ध्यान रखना है, परिवार वालों का ध्यान रखना है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। और एक चीज़ है, अगर आपको नॉर्मल सिम्टम्स आपको ऑलरेडी बताया गया है कि 6 दिन आपको फिर आपको घर पे रहना है, आइसोलेशन लेना है, जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है वो लेना है। 6 दिन के बाद कॉम्प्लिकेशन, आज जो नया ट्रेंड है 6 दिन के बाद कॉम्प्लिकेशन। तो अगर आप 6 दिन हो जाते हैं किसी को, 6 दिन के बाद थोड़ा सा आपको सीरियस रहने की ज़रूरत है। छोटा सा भी अगर आपको ऑक्सीजन लेवल में, SpO2 में, या और कोई आपको साइड इफेक्ट उसका आता है, सांस लेने में तकलीफ है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। तो पहले 6 दिन तो ठीक है, लेकिन 6 दिन के बाद आजकल जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत तेजी से हो रहे हैं। इसके अलावा जैसे ही पेशेंट डायग्नोस होता है, तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से उसके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पहले 6 दिन में वायरस जो है वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है बॉडी के अंदर, वो बढ़ता है। तो जितनी भी दवाइयाँ हैं उसी समय काम करती हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो डेक्सामेथासोन है, या कोई भी दवाई है, एंटीवायरल है, या कोई भी दवाई, मैक्सिमम 6-7 दिन जब तक वायरस ग्रोथ कर रहा है तभी उनका असर रहता है। वो दे ऑल आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर और वायरोस्टैटिक इन नेचर, दे प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द वायरस। तो वो आप मान के चलो। तो शुरू के 6-7 दिन में अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन लेते हो, बट विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर, दिस डेफिनेटली कैन हेल्प यू। This few things which I wanted to share with all of you. If you any have further question or any on this, so you always can post on this thing in the chat box on the question answer. I love to answer that. So मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, हम लोग घर में बहुत खुश रहते हैं। हाँ, लास्ट मैंने आपको बताया नहीं, आप प्रोनिंग जरूर करो। प्रोनिंग क्या है कि आप घर में पेट के बल थोड़ी देर लेटो, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, जितनी देर आप लेट सकते हो। आप खुद से असर महसूस करोगे। आप पहले पल्स ऑक्सीमीटर से आपका ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेना, और आधा घंटे आप लेट जाना पेट के बल, थोड़ा हाथों को ऐसा ठुड्डी पे लगा के। आप घर में नॉर्मली बात करते हो, फोन ऑपरेट करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, उस समय आप प्रोनिंग पोज में ही रहो। लैपटॉप यूज करते समय आप ऐसे लेट जाओ और आराम से लैपटॉप यूज करो। फोन यूज करते समय आराम से लेट जाओ। हम लोग आपस में गप्पे शप्पे भी मारते तो ऐसे ही मारते, हम लोग प्रोनिंग पोज में ही गप्पे शप्पे मारते हैं। तो प्रोनिंग बहुत जरूरी है। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, जैसे ही आप प्रोनिंग करोगे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है तुरंत ही बढ़ जाएगा, राइट। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अर्जेंट बेसिस पे करना चाहिए और आप करते रहिए। ओपन एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत आप एरोबिक्स या फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो। क्लोज एनवायरनमेंट में जहाँ पे और लोग आते हैं वहाँ नहीं करना। घर के अंदर कर सकते हो या ओपन एनवायरनमेंट में थोड़ी बहुत एरोबिक्स कर सकते हो। सब कुछ ऐसा करो जिससे कि आपके लंग्स को नुकसान नहीं हो। लंग्स जिससे स्ट्रेंथन होते हैं, लंग्स के भलाई के लिए आप जो करना चाहते हो वो करो। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर कोविड, और इफ एनीवन हैज एनी क्वेरी ऑन दिस थिंग यू कैन ऑलवेज आस्क। आपस में पुराने मित्रों को याद करो, पूछते रहो। इन दिनों में मैं बहुत खुश रहता हूँ। क्यों? ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब बोलना नहीं चाहिए, बट जहाँ पे हम कुछ ना कुछ कर पाए, उनकी लाइफ में कुछ चेंज कर पाए। काफ़ी सारे लोगों को बेड दिलवाया, काफ़ी सारे लोगों को ऑक्सीजन दिलवाई, काफ़ी सारे लोगों को रेमडेसिविर दिलवाया, राइट। सो अगेन हम बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, इस विषय में नहीं किया तो हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो अंदर से खुशी होती है, डोपामिन रिलीज होता है, हमारा खुशी मिलती है। तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, एंड दे गिव मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो आप करो, रादर देन क्रिएटिंग सेंसेशन कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप क्या जो कर सकते हो वो आप करो, जितना आप कर सकते हो वो करो, राइट। किसी के लिए आपने कुछ नहीं तो हेल्पलाइन से नंबर ही दे सकते हो,
कहीं से आप वेबसाइट पे जाके कुछ रेमडेसिविर का आपको मिल रहा है वही भेज दो, कहीं पे आपको लाइफ स्टेटस मिलता है बेड्स का आप वही सर्वे कर दो, कहीं पे आपको कुछ भी मिलता है आपको तो आप ग्रुप में डालो, 4 लोगों को बताओ कि भाई यहाँ पे ये मिल रहा है, वहाँ पे ये मिल रहा है, इतना तो कर सकते हैं हम, राइट। ये कनेक्शन, और इस समय शर्म वाली बात नहीं है किसी को भी बात करना। हम जिसको दूर दूर तक भी नहीं जानते उससे फोन पे बात कर रहे हैं, अगर मेरे एक फोन करने से वो भले हमको झिड़क दे, डांट दे, फटकार दे, कोई बात नहीं, लेकिन उससे अगर किसी का काम बनता है तो जरूर करना चाहिए। भारती मैम ने बोला है योगा 100%, योगा स्पेशली लंग्स योगा, भ्रामरी, प्राणायाम, भस्त्रिका, आप जितना कर सकते हो करो, और वो बैठे बैठे भी हो सकता है, अनुलोम विलोम, वो बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर सुबह बिस्तर पे उठिए, नित्य क्रिया होकर आइए, बैठिए जगह पे, आप जितना कर सकते हो उतना करो। आपको जितनी भी लंग एक्सरसाइज आती नहीं आती तो यूट्यूब चला लो, यूट्यूब में तो सब आप माहिर हो चलाने के, तो उसमें आपको 15 चीजें दिखेंगी। बाबा रामदेव है, बहुत सारे श्री श्री रविशंकर हैं, बहुत सारे लोग आपको सिखाते हैं कि कैसे करना चाहिए, अगर आपको सही तरह से करना नहीं आता, और काफी लोग को आता भी होगा। आता है का सवाल नहीं है, लोग करते नहीं है का सवाल है। लोग जानते बहुत कुछ हैं लेकिन मानते नहीं है, प्रॉब्लम वहां इकट्ठा होती है। हम बहुत कुछ जानते हैं, हम भगवान को जानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं, प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। सो दिस इज आई थिंक फॉर ऑल ऑफ यू, राइट मैडम, योगा मस्ट है, योगा करना ही चाहिए, जितना आप कर सकते हो उतना करो, सूर्य नमस्कार करो आप, राइट, बाकी जितने आप आसन लगा सकते हो लगाओ, खास तौर पे आप प्राणायाम पे विशेष ध्यान दो। प्राणायाम मतलब जो लंग्स रिलेटेड एक्सरसाइज हैं, योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, वो सही है, लेकिन आज की तारीख में आप आपका आहार और आपका प्राणायाम, ये 2 चीजें खास तौर पे करो, आसन जितने लगा सकते हो उतने आप लगाओ, राइट। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते थे, आई थिंक दिस विल हेल्प यू, और फिर से मैं बोलूंगा डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कैन आई शेयर माई स्क्रीन नाउ? Yes, sir. Okay, so now let's come to the topic, and before coming to the topic, let me see who can have a very quick and fast calculation. Right, so can someone tell me 24 into 60? 24 multiplied by 60? Anyone in chat box? 1440. Superb. Shipra, wow. Are you using calculator? Okay, निहाल ने भी बता दिया, वेरी गुड। कैलकुलेटर यूज कर रहे हो भाई? Shipra is from MSc and Nihal is from engineering. सुपर्ब। आपने कैलकुलेटर यूज किया, ऐसे ही किया? Anuj is from MSc chemistry. ओके, Reflect. हाँ, Shipra, Nihal, Anuj, please reflect. क्या यूज किया? अच्छा, ब्रेन यूज किया, वाओ सुपर्ब। तो चलो 27 into 60, 27 multiplied by 60. Oh, 1620 सर, हाँ अभी आया 27, राइट, 1620 करेक्ट। सबसे पहले परवेज ने दिया, he is engineering student, yes, chemical, and others are from MSc chemistry, bioscience. निहाल बोल रहा है ह्यूमन एरर। He is engineer. Very good. Okay, I can tell you 28 into 60, 29 into 60. You can tell me any number, I will tell you the multiplication. So 28 into, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है देखो, no nothing, no Google, right? You tell me any multiplication which I can tell you. Again use a, so किसी ने बोला है 27 into 27. So 27 into 20, 26. 27 is 729. If you minus that is 702. हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं, इट इज 702। अभिषेक ने मेरे को बोला है इट इज 702। हमको जरूरत नहीं कैलकुलेटर की, आपके सामने देखिए। एनीवेज, सो कैसे किया वो हम कभी फिर सिखाएंगे आपको, कैसे किया, हाउ टू यूज योर ब्रेन टू डू दिस कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन एंड दिस थिंग। अच्छा, अभिषेक बोला मुझे पता था, वेरी गुड। सो नाउ अगेन 1440 to 60, 1440 into 60,
1440 into 60. Come on, don't be lazy. कर रहे कैलकुलेटर ढूंढने में तो टाइम लगता है ना. आगे सर आंसर्स आने चालू होंगे. वेरी गुड शिप्रा. 86,400. 8640 नहीं, 1440 into 60. Right. So 23,040 is little confused kind of answer. Yes. 86,004. शायद सुना नहीं परवेज ने बराबर. अभी वो तो ऐसा हो गया कि मैथ का एग्जाम में दे के आया, सब लोग आपस में बहस कर रहे हैं कि मेरा आंसर 7.3 है, कोई बोला मेरा आंसर 7.4 है, और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आंसर 1500 कैसे आया. सो ऐसा मत डराओ मत भाई. सो 86,400 हमने क्यों कराया कैलकुलेशन, बताओ ये क्यों कराया कैलकुलेशन, कोई बताएगा? Why we have done this calculation of 86,400? Let me see the participation now. सोचो अनुज, परवेज, अभिषेक, सोचो क्यों कैलकुलेशन कराया? आपकी मैथमेटिक्स एबिलिटी चेक करने के लिए? शायद धीरज सर भी होंगे. नहीं, स्टूडेंट्स जानते हैं. कम ऑन, आंसर. माइंड हमारा कितना एक्टिव है. अच्छा देवर्ष बोल रहा है, वेरी गुड देवर्ष. और माइंड एक्टिव है तो चेक अटेंटिवनेस, टाइम मैनेजमेंट. यस निर्जरी देखो ने पॉइंट पे आगे, टाइम मैनेजमेंट करना है. नेक्स्ट सेशन वही है, इसीलिए कराया. वेरी गुड. तो जैसा आप जानते हो एक दिन में इतने ही सेकंड होते हैं. इन अ डे you have 86,400 seconds, correct? Right. So everyone has 86,400 seconds. वो कंपनी के ओनर हैं, वो भी एम्प्लॉय हैं, वो भी वो CHRO हैं, वो भी वो प्रेसिडेंट हैं, वो भी, और वो सीनियर मैनेजर हैं, वो भी वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो भी वो ऑफिसर हैं, वो भी, सबके पास उतना ही टाइम है. सुपर्ब. क्या सुपर्ब. एक्चुअली ये हमने भी सोचा नहीं था. जबरदस्त. ये तो मतलब एक नया ही आपने एंगल दिया है. क्या लिख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन तो कर ही लेंगे, लेकिन उसमें कितना कम टाइम हम लेते हैं, राइट? उसके लिए हमने आपको मल्टीप्लिकेशन कराया. सुपर आंसर. आई थिंक दिस इज द वेरी गुड कोरिलेशन विद इन दिस मल्टीप्लिकेशन एंड द टाइम मैनेजमेंट. तो जो जितना कम से कम टाइम लेगा, जो अपने टाइम को ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज करेगा, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने टाइम पे ज्यादा अच्छे से लेगा, आई थिंक वो टाइम सही से यूटिलाइज हो रहा है, या उसका टाइम अच्छी जगह पे यूटिलाइज हो रहा है. क्या एक्चुअली ये मेरे लिए भी एक डी आंसर है. सो आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने आंसर दिया. नेक्स्ट टाइम ये आंसर मैं जरूर यूज करूंगा अपने इस सेशन के लिए. थैंक यू सो मच. सो नाउ लेट मी कम टू दी माय प्रेजेंटेशन. एक्चुअली आई विल हैव अ वेरी ब्रीफ प्रेजेंटेशन दिस टाइम, और आपको ये मैं उस पर रखूंगा. Be participative as you are participating right now. Okay. Right. Is my screen visible? Dr. Namrata? Yes, sir, it is visible. Sir. So first and foremost, why to manage your time? Because ultimately, as I said, everyone has got 86,400 seconds. सबके पास उतना ही टाइम है. तो हमको फोकस करना है एक्टिविटीज जो हमारे गोल को सपोर्ट करती है. एलिमिनेट डिस्ट्रक्शन एंड रिमेन फोकस. सो इसके लिए हमको अपना टाइम मैनेज करना जरूरी है, कि हमको फोकस रहना है, राइट? अवॉइड स्ट्रेस. अक्सर स्ट्रेस होता है क्योंकि हम डेडलाइन पूरी नहीं कर पाते हैं, सॉरी टाइमलाइंस मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए स्ट्रेस अक्सर होता है. अगर टाइम रहते हमारी चीजें हो जाती तो स्ट्रेस कभी नहीं होता है. अगर लाइट बिल 15 तारीख को भरना है, अगर 12 को भर दिया तो स्ट्रेस नहीं है. अगर 14 की रात को याद आया तो फिर पक्का स्ट्रेस है, और 15 को दोपहर में याद आया तो फिर भयंकर स्ट्रेस है. सो स्ट्रेस दूर करने के लिए भी टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है. मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, अगर मेरे को सॉफ्ट कॉपी मिलेगी तो मैं जरूर आपको भेजूंगा. बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग. बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग. दिस बुक इज वेरी गुड ऑन टाइम प्रायोरिटाइजेशन. आपको मिले तो आप पढ़िएगा, नहीं मिले तो मैं कोशिश करूंगा आपको सॉफ्ट कॉपी देने के लिए. ईट दैट फ्रॉग. इट हैज अ गोल्डन 21 रूल्स to manage your time or prioritize.
eat that frog. Correct. So second thing is you can become a role model for other colleagues and friends by managing your time, and you can improve on the job performance, right? हमारे साथ कई लोग थे स्कूल में जो ऐसे लगता था कि पढ़ते नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से पढ़ते थे, वो अपना टाइम सेट यूटिलाइज करते थे, राइट? और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनमें से कुछ आईएएस हैं आज, कुछ माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छी जगह पे हैं, कुछ हमारे आईपीएस हैं। एक तो खेड़ा जिला में ही है आईपीएस हमारे, एक हमारे यहाँ पे अपने सेक्रेटरीट में सीनियर सेक्रेटरी हैं टू रूपानी। सो राइट, ऐसे कई लोग हैं, कुछ हमारे ही ऑफिस में हैं, काफ़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, राइट? तो वो भी, उनके पास भी उतना ही टाइम होता था पढ़ने का, राइट? कुछ लोग बड़ी तारीफ लेते थे कि सर हम तो देखिए 2 ही घंटे पढ़ते हैं। तो एक हमारा एक लड़का गया सर के पास कि सर कितने परसेंट मार्क्स हैं सर? वो बोले 78%। तो बोले लेकिन सर हम 2 ही घंटे पढ़ते थे। अब सर को बहुत जोर से गुस्सा, ने 2 थप्पड़ खींच के दे दिए। हमारे स्कूल में मारपीट बहुत हिंसा होती थी भाई, आप लोग को शायद बुरा लगेगा, लेकिन हम जिस स्कूल के पढ़े हैं, हम लोगों ने क्लास 12 तक तो मार खाई है, और हम लोगों ने कभी वो चीज़ रखी नहीं है मन में। आज भी वो टीचर्स हमारे सारे ग्रुप में हैं, आज भी सारे संपर्क में हैं, उतने ही आदरणीय और पूजनीय हैं जितने उस समय। मार खा के भी हम लोग पैर जरूर छूते थे, ये कभी नहीं हुआ कि हमको मारा या ऐसा, क्योंकि हमें मालूम है प्यार भी वो उतने ही करते थे। अगर कहीं से अगर कुछ निकल जाए, खून निकल जाए, तो उनके उतने ही आंसू गिरते थे। वो हमें मालूम था कि कुछ होगा तो करेंगे भी यही। तो उतना हमारा आपस का प्रेम था। उन्होंने उनको 2 थप्पड़ मारे कि बोले कि 2 घंटे क्यों पढ़ते थे, 4 क्यों नहीं पढ़ते थे, तो तुम्हारा कुछ और काम है क्या? तो बोले नहीं, तुम्हारा तो विद्यार्थी जीवन में एक ही काम है, विद्यार्थी पढ़ना, मतलब तो तुमको पढ़ना ही चाहिए था। 2 घंटे क्यों पढ़ा, बाकी टाइम क्या किया तुमने? तो गए थे होशियारी मारने और मार खा के चले आए। तो तो ये है टाइम का सही यूटिलाइजेशन। 2 घंटा पढ़ने में होशियारी या बहादुरी नहीं है, बहादुरी ये है कि हाँ आपने क्या किया उससे, या अल्टीमेट गोल जो लाइफ आपका जो अचीव वो कर पाए कि नहीं कर पाए। सी ये टाइम फिर लाइफ में नहीं आएगा। सी हम लोग बैठ के फिर बड़ी बड़ी बातें करते रह जाएंगे। आज हम 46 साल के हो गए, आज हम बोल सकते हैं कि अगर हमने बीएससी के टाइम पे ऐसा नहीं किया होता, या एमएससी के टाइम पे ऐसा नहीं किया होता, या थोड़ा और मेहनत करी होती, तो हमने आईएएस की तैयारी कर ली होती, तो आज हम सिर्फ बोल ही सकते हैं और आपको सलाह दे सकते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा करना चाहिए। लेकिन उस समय शायद टाइम यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाए थे ठीक से, जो आज आप समय रहते कर सकते हैं। बट अगेन आप बोलोगे कि सर बोलना आसान है, हमारे तो 10 काम है। कल हमने सुना कि कोई वीडियो गेम खेल रहा था और वो ऊपर टेरेस से गिर गया, एंड ही डाइड एक्चुअली। सो इट इज़ एब्सोल्यूट मिस यूज ऑफ टाइम। अगर सी ठीक है, गेम खेलने से शायद दिमाग एक्टिव होता होगा, लेकिन हमने तो ऐसे लोग देखे हैं जो उस चक्कर में बहुत कुछ उनको नुकसान हो चुका है। मतलब वो इस हद तक एडिक्शन बढ़ गया है कि वो लोग जॉब पे या उस पर फोकस नहीं कर पाते स्टूडेंट लाइफ में। सो वो थोड़ा सा हमको अवॉइड, हम खैर आई विल कम टू दैट इन प्रायोरिटाइजेशन, राइट? जस्ट अ मिनट। या सो 2 तरह की चीज़ें होती हैं करने के लिए। हाउ डू वी स्पेंड आवर टाइम, अपना टाइम हम कैसे निकालते हैं? एक तो होता है डूइंग अर्जेंट थिंग्स, थिंग्स विच वी आर सपोज टू डू राइट नाउ, एंड देयर समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि सारी अर्जेंट चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, या सारी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अर्जेंट है क्या? सोचिए आप कि हमारे लाइफ में कौन सी चीज़ें अर्जेंट हैं। चलो मैं अपना चैट बॉक्स खोल लेता हूँ। हमारी लाइफ में कौन सी चीज़ें अर्जेंट हैं? सोचो सोचो, अर्जेंट मतलब तुरंत करना है। आज की तारीख में अगर हम बोलें आपके लिए क्या अर्जेंट है, बताइए। सोच रहे हैं लोग, गुड। डेली रीडिंग, ओके। डेली रीडिंग अर्जेंट, और स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडे, ओके। रीडिंग डेली, ओके। और सोचो, सर्वाइव, ओके। शिप्रा लिख रही टू सर्वाइव, ओके। नो, अभी तो अपना कैरियर बनाना है, यस। बी इनोवेटिव, ओके। ओके, फिटनेस। विवेक सिंह भदौरिया, जाते हो वॉक अप, कुछ करते हो फिटनेस के लिए?
ओके अच्छा चलो, आपने लिखा अर्जेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है आज की तारीख में, व्हाट थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू अस टुडे, आज की तारीख में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, फूड सेफ्टी, आवर सेफ्टी, ओके ओके, अनुज निखिल अतुल लिख रहे हैं सेफ्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, वाह निखिल लिख रहे हैं ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है, आप समझ में आया सबको, अभी भी पेड़ कट रहे हैं दोस्त, बॉडी हेल्थ, ओके और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आज की तारीख में, केयर टू एवरीवन, राइट, फैमिली के साथ अपनी हेल्थ, राइट, कैरियर पे फोकस, राइट, करेक्ट। सो अभी देखो सिंपल अगर हम बात करें तो अगर कोई चीज डेडलाइन के साथ आती है, डेडलाइन के साथ कि ये इतने समय के अंदर हो जानी है, तो वो होती है अर्जेंट चीज, ठीक है। जो सारी चीजें डेडलाइन के साथ आती हैं या उसका एक फिक्स डेट होता है कि उस दिन के पहले अगर आपने नहीं किया तो वो चीज चली जाएगी या खत्म हो जाएगी, उसको बोलते हैं अर्जेंट। कुछ चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट, मतलब हमको मालूम है हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, हमको लाइफ में क्या करना है, आज आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या आपको मालूम है, तो वो चीजें आप जो प्रायोरिटी के लिए जो करते हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यस और नो। बट ये इंपॉर्टेंट चीजों में जरूरी नहीं कि टाइमलाइन हो ही, बट ये पक्का है अगर उसमें टाइमलाइन है तो वो अर्जेंट है, और जितनी पास में टाइमलाइन है वो उतनी अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो हमको लाइफ में अपना गोल अचीव करना है उसके लिए हम जो चीजें करते हैं वो सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट है कि नहीं वो फिर हम बाद में देखेंगे। इतना समझ में आया सबको कि हमारे लिए अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। तो अगर मैं बोलूंगा कौन कौन सी चीजें ऐसी जो टाइमलाइन के साथ आती हैं, जिसमें एक टाइमलाइन फिक्स होता है, इतने समय से पहले कर देना है, सोचो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हम टाइमलाइन के साथ हम दे सकते हैं। एग्जाम, ओके करेक्ट, राइट, एग्जाम टाइमलाइन के साथ आते हैं, अगर एक बार टाइमलाइन निकल गई तो फिर कोई मतलब नहीं। और क्या टाइमलाइन के साथ आते हैं, लाइट बिल, सुपर्ब जयदीप, लाइट बिल 15 को भरना है, 15 को भरना नहीं तो लाइट कट जाएगी, अर्जेंट चीज है। अगर आज 15 है तो खत्म हो गया मामला, कुछ भी करके सबसे पहले भर के आना है, यस सर नो, सही बोला आपने। अगर एग्जाम मान लो मेरे अभी फिलहाल है, अगर 3 तारीख को, 4 तारीख को, 5 तारीख को है, तो हमारे लिए सबसे वो अर्जेंट हो गया, क्योंकि वो सबसे पहले है, MCQ इन एग्जाम्स, राइट। सो हमारे लिए अर्जेंट हो जाते हैं कि जो चीज जो भी चीजें टाइमलाइन के साथ आती हैं वो हमारे लिए अर्जेंट हो जाती हैं, और जितनी पास में वो टाइमलाइन डेडलाइन होगी वो उतनी ही अर्जेंट होगी, राइट। ऐसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है आजकल, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, लोन का हफ्ता, सही बात है, नहीं तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे वो लोग, अगर टाइम पे नहीं भरा तो हमारा सिविल स्कोर खराब कर देंगे, करेक्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आज हमको जो मेरा लाइफ का मेजर गोल है उसको अचीव करना है, तो मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ गोल तो होगा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके, तो सबकी लाइफ का कुछ ना कुछ तो गोल है कि भाई किसी को ये बनना है, किसी को वो बनना है, तो वो बनने के लिए जो हम सोचते हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या हो सकता है, सोचो। तो जिग्नेश ने लिखा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, यस, और स्किल्स इंपॉर्टेंट है, यस, स्किल्स के बिना आप कैसे अचीव कर पाओगे, राइट। डिटर्मिनेशन जरूरी है अभिषेक टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, राइट। होम क्वारंटाइन इंपॉर्टेंट है, यस, अपने आप को खुद को घर में बंद करके रखना जरूरी है कुछ दिनों एटलीस्ट, जब तक ये सेटल नहीं हो जाए। वर्क ऑन टाइम इंपॉर्टेंट है, यस, राइट। आई थिंक आप सोचिएगा इस बारे में, सी जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लिए अर्जेंट क्या है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। अगर आप समझ गए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट क्या क्या है तो समझो आप टाइम मैनेजमेंट सीख गए, राइट। इसमें ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है आपको बताने के लिए कि भाई टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या है। तो चलिए कुछ मैट्रिक्स आपको दिखाते हैं।
right? As you can see, some things are there which are important, then you can see something which is not important. Right side you can see something which is very urgent and something which is not urgent, right? So एक ऐसा क्वाड्रेंट हम बनाते हैं, राइट? इस क्वाड्रेंट में कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट दोनों हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, मतलब उसका डेडलाइन नहीं है। कुछ चीजें अर्जेंट है, मतलब बहुत आज ही करनी है या अभी हाल फिलहाल ही करनी है, लेकिन उतनी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ चीजें ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। तो एक क्वाड्रेंट है, आप मैं भेज दूंगा आपको प्रेजेंटेशन बाद में, कोई दिक्कत नहीं, बट ये एक क्वाड्रेंट आपको समझना बहुत जरूरी है। आज सोचिए कौन सी चीजें हैं जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। घर में कोई क्राइसिस हो गया, घर में किसी को भगवान न करे कोई बीमारी हो जाए, राइट? उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, हाँ या नहीं? अगर घर में किसी को बीमारी हो जाए या कुछ हो जाए या किसी को सिम्टम्स आ जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना या डॉक्टर को कंसल्ट करना, ये इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है या नहीं? बिल्कुल है, राइट? आप बोल रहे हैं है। तो अगर किसी को कुछ हो जाता है तो डॉक्टर को दिखाना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, करेक्ट? आपको मान लो आपका एग्जाम है 4 तारीख को, तो एग्जाम हॉल में जाना इंपॉर्टेंट और आज 4 तारीख है, आज शाम को आपका एग्जाम है, तो आपको वहां जाना इंपॉर्टेंट अर्जेंट है या नहीं है? एग्जाम हॉल में आधा घंटे पहुंचना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है या नहीं है? राइट, है। तो जहाँ पे जो इस तरह की चीजें हैं, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, मीटिंग्स हैं, एग्जाम्स हैं, वो उस दिन पे उस समय पे होने ही होने हैं, मतलब उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। अगर आज वो तारीख है तो इंपॉर्टेंट अर्जेंट दोनों हो गए, राइट? तो ये हमको समझना है हमारे लिए इंपॉर्टेंट अर्जेंट क्या है, कि अगर अभी का अभी नहीं किया तो इट कैन फायर फाइटिंग की नौबत आएगी, मतलब उसमें प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो सो आप जब भी आप सुबह उठते हो या आप दिन के लिए निकलते हो या आप हफ्ते में भी एक बार कर सकते हो, संडे को यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। आप अपने जो टू डू लिस्ट बनाते हो, टास्क इन हैंड बनाते हो, तो आप 10, 12, 15, 20 आपने जो टास्क बनाए उसको इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अर्जेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अर्जेंट तो हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट उतनी नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें ना तो अर्जेंट हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं लॉन्ग, जैसे ऐसी कौन सी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है अर्जेंट नहीं है। जैसे जैसे एग्ज़ाम मेरा मान लो आईआईटी एग्ज़ाम है, आईआईटी एग्ज़ाम मेरा अक्टूबर में है, तो इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट है क्या आज की तारीख में? एग्ज़ाम मेरा अक्टूबर में है, आज की डेट में वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन क्या अर्जेंट है वो? अगर कोई एग्जाम मेरा अक्टूबर में है तो क्या वो अर्जेंट है आज की तारीख में? नहीं। लेकिन वो एग्जाम मेरा परसों है तो क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट है? अगर वही एग्जाम तो वो पक्का फिर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। आई थिंक इससे आपको समझ में, अगर किसी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं और वो एग्जाम कुछ दिनों बाद में या वो कुछ भी बाद में है तो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना अर्जेंट नहीं है। अभी प्लानिंग कर रहे हैं, हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेना है, हमको 1 करोड़ रुपया कमाना है, आज तो नहीं कमा सकते हम, इसमें टाइम लगेगा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, इट विल टेक सम टाइम। रिलेशनशिप बढ़ानी है, किसी से दोस्ती बढ़ानी है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। एक दिन में दोस्ती नहीं हो जाएगी ना, कि कल गए परसों फ्रेंडशिप हो गई और सब मामला ठीक हो गया, तो कुछ चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। तो जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग है तो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। समाज सेवा है, लोगों की भलाई है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है क्या? आज का आज इंपॉर्टेंट समाज सेवा कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ये लॉन्ग टर्म है गोल, राइट? तो ये हमेशा चलते रहने वाली चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। हाँ, आज की तारीख में हमें किसी ना किसी की हेल्प करनी है लेकिन आज ही हेल्प करने से हेल्प हमारी खत्म नहीं हो जाएगी। सो ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें अर्जेंट हैं, जैसे आपने बोला लाइट बिल है, राइट? अननेसेसरी रिपोर्ट्स हैं, या आपने किसी से वादा किया था 4 बजे आज मिलना है, राइट? अनइम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं जिसमें जैसे किसी को आपने प्रॉमिस किया था कि इतने बजे आप उसको फ़ोन कॉल, या वो आपको फ़ोन कॉल करेगा, या माइनर इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे घर के इश्यूज़ हैं, तो उस केसेस में वो अर्जेंट तो है, आज ही उन्हें आपने किसी को प्रॉमिस किया तो आपको जाना चाहिए लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइट बिल है, राइट? अर्जेंट है, आज ही भरना है। हाँ, ऐसे देखो तो इंपॉर्टेंट है लेकिन, राइट, लेकिन आपकी जगह कोई और भर सकता है। तो आई विल गिव यू अ फॉर्मूला, आपको क्या करना चाहिए इसमें, राइट? अभी कैसी चीजें हैं जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है?
जैसे सबसे बड़ा तो आप भी जानते हैं, मार्क जुकरबर्ग दे के गए हमको। क्या है सर वो? ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। जुकरबर्ग साहब ने दोनों खरीद रखे हैं वो। एनीवन? ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, और दोनों जुकरबर्ग साहब के ही प्रोडक्ट हैं। अरे बोलो बोलो, कोई बात नहीं, हमें मालूम है सब लोग वही करते हैं, हम भी करते हैं थोड़ा बहुत। देखो आ गया अभी फेसबुक एंड व्हाट्सएप, राइट, करेक्ट करेक्ट। सो देखो दोस्त, ठीक है, लेजर टाइम में वो सब करना अच्छा है, राइट, लेकिन क्या वो इम्पोर्टेंट अर्जेंट है? दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोशल मीडिया यूज, करेक्ट किया, तो क्या वो इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है कि नहीं? अब भी फेसबुक नहीं देखेंगे तो मेरे फ्रेंड को जो है ना वो स्ट्रेस हो जाएगा, उसको हाइपोक्सेमिया हो जाएगा, या उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा, या उसको स्ट्रेस आ जाएगा, उसको हॉस्पिटल एडमिट कराना पड़ेगा। मेरे दोस्त ने फोटो भेजा है, अगर मैं उसको लाइक नहीं करूंगा ना तो 15 मिनट में उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना? या किसी ने फेसबुक या व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज नहीं डाला, कोई दो जोक क्रैक नहीं किए। हाँ, आजकल व्हाट्सएप कई लोग बहुत अच्छे यूज के लिए भी कर रहे हैं, कि जो भी उनको कहीं से हेल्पलाइन मिलती है, कहीं से कुछ उनको नंबर मिलते हैं, वेरीफाइड उनको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, तो वो फ़ोन करते हैं या वो लोग सर्कुलेट करते हैं। बट मैक्सिमम अभी भी मैं बोलूँ तो लोग सुधर नहीं रहे हैं। कहाँ से क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज लेके चले आते हैं, मतलब बिना मतलब में डराते रहते हैं। कई बार तो बहुत गुस्सा भी आती है। जितने ग्रुप्स में हम कर सकते हैं जरूर मिथ्स को बस्ट करते हैं। आई एम वर्किंग एज ए मिथ बस्टर इन मेनी ऑफ द ग्रुप। जहाँ पे भी हमको ऐसा लगता है तो मैं जरूर बोलता हूँ सर ऐसा मत कीजिए। बहुत तरह की चमत्कारी दवाइयाँ आपको बताई जाती हैं, बहुत तरह की ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। ऐसा कोई दवाई नहीं है कि आपको लेते ही ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। वो नहीं है ग्लाइकोडीन खांसी से मुक्ति की। आपने इधर दवाई पी और उधर आपकी खांसी ठीक हो गई। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस, you should know every drug goes through administration, distribution, metabolism, then excretion. So every drug has got a drug of, the mode of action. Every drug has got a, time of administration. Every drug has got a, its time to act. ऐसा नहीं होता इधर आपने दवाई खाई ऐसा कि भगवान ने ऐसा सर पे हाथ रखा और एकदम स्वस्थ हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक दवा को टाइम लगता है और कोई भी दवा चमत्कारी नहीं है। तो जितने भी बड़े बड़े जो टॉल क्लेम्स किए जा रहे हैं, प्लीज प्लीज उसमें मत आइएगा। अनलेस अनटिल आपके पास कोई वेरीफाइड या आप किसी को सर्टिफाई कर सकते हैं, आप प्लीज मत करिए। और खास तौर पे गूगल के पास मत जाइए। गूगल में भ्रामक जानकारियां बहुत ज्यादा हैं। आपको ट्रस्टेड सोर्स पे जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से ट्रस्टेड सोर्सेज हैं? लैंसेट, लैंसेट एक ट्रस्टेड सोर्स है। एनसीबीएल एक ट्रस्टेड सोर्स है, राइट। मायो क्लिनिक है, ट्रस्टेड सोर्स है। तो आप कभी हमको पूछेंगे तो आपको बताएंगे कौन से सोर्सेज हैं ट्रस्टेड हैं, जो साइंटिफिक ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, जहां से इंफॉर्मेशन को आप बिलीव कर सकते हो, जहां की इंफॉर्मेशन हमेशा करेक्ट ही होती है। आप मिम्स में जा सकते हैं। मिम्स इज ए साइंटिफिक ड्रग्स। आप ड्रग्स में जा सकते हैं, आप ड्रग इंडेक्स पढ़ सकते हैं। ये सब आपको साइंटिफिक ऑथेंटिक। आपको फिर भी कंफ्यूजन है, आप वो चीज़ नहीं समझ रहे हो, आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं। खुद से मत कीजिए। बहुत सारी दवाइयों के नाम बताए, होम्योपैथिक या ये वो करने से ठीक हो जाता है, कुछ ठीक नहीं होता है। कोई भी थेरेपी, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, वो पेशेंट स्पेसिफिक होती है, वो डिसीज स्पेसिफिक नहीं होती है। अगेन आई एम टेलिंग, every therapy, whether it is allopathy or ayurvedic, or it is homeopathic, it is patient specific, not the therapy specific. आपको थोड़ा बहुत सब रिलीफ जरूर देंगी, लेकिन अगर स्पेसिफिक इलाज चाहिए तो आपको पेशेंट स्पेसिफिक थेरेपी करानी ही पड़ेगी, राइट। सो समथिंग आई वांटेड टू से ऑन दिस थिंग, सो एक्सेसिव यूज ऑफ टीवी, इंटरनेट, दे ऑल आर, अगर आप पढ़ाई के पर्पज से कर रहे हो अच्छी बात है, राइट। अगर आप कुछ सीखने के लिए कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आपको भी मालूम है डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं। तो एक एक ऐसा आप मान के चलो कि दिन में हमारा जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है उसमें कितना टाइम यूटिलाइज होना चाहिए आपकी नज़रों में। अगर हम दिन में 100% टाइम लेके चलें तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में हमारा कितना टाइम जाना चाहिए, कितना परसेंटेज? एनीवन? अगर मैं बोलूं हमारे पास 100% टाइम है, उसमें से अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में हमारा कितना टाइम जाना चाहिए? एनीवन? अगर 24 घंटे में से
कितने घंटे हमको अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में डेडिकेट करना चाहिए? 80%। सुपर देवर्ष। सोएंगे भी भाई 24 घंटे में से, तो 18 घंटे ही लेते हैं, ये 17 घंटे लेते हैं। 17 घंटे में से 12 घंटे, चलो ठीक 13 घंटे, राइट, ठीक है, एग्री। ये उल्टा तो नहीं होगा? 80% टाइम नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट में जाएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये उल्टा तो नहीं हो जाएगा? पैरेटोस प्रिंसिपल उल्टा बोलता है। तो पैरेटोस प्रिंसिपल क्या बोलता है? 20% एक्टिविटीज आर डन फॉर 80% सक्सेस इन योर लाइफ, एंड 80% एक्टिविटीज आर डन फॉर द रिमेनिंग वेस्ट ऑफ 20% थिंग्स इन लाइफ। तो आप वो प्रिंसिपल तो नहीं यूज करते हो? अगर नहीं तो अच्छी बात है। It is said 20% things done in a day should help you 80% goals of your life. That's how the Pareto's principle which has been changed. Good. I hope you understood this matrix. I will again share with you and this thing. So some formula says the triple S formula. So shrink. First is shrink or schedule it right now. मतलब urgent important thing you should do right now. सबसे पहले आप क्या करो, जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है उसको एकदम खाली कर दो। उसमें अगर आपने 10 चीजें लिखी तो 10 के 10 तुरंत करके खत्म करो, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर फायर फाइटिंग। तो उसको श्रिंक करो। जो Q1 था आपका, क्वाड्रेंट 1 था अर्जेंट इंपॉर्टेंट वाला, उसको खत्म कर दो। जो सेकंड क्वाड्रेंट था आपको, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, उसको शेड्यूल करो। पर अभी एग्जाम अक्टूबर में है, तो उसको आप कैसे शेड्यूल करोगे? कब कौन सी तैयारी करोगे? किसकी हेल्प लोगे? कौन सी बुक खरीदो? क्या करोगे? उसको शेड्यूल करो। जो इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन अभी उतनी अर्जेंट नहीं है, तो उसको आप शेड्यूल कर सकते हो, राइट। जो जो थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट क्या था कि अर्जेंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप किसी को डेलीगेट कर सकते हो। क्या आप सोचो, अगर लाइट बिल भरना है, आपकी जगह कोई और भर सकता है क्या? आप सोचो, ये फोन का बिल भरना है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हो क्या? तो ये जो क्वाड्रेंट 3 में एक्टिविटीज हैं उनको आप डेलीगेट करने की कोशिश करो। कोई आपके बदले में कर सकता है क्या? आपके घर में कोई है, या आप ऑनलाइन कर सकते हो, या कोई अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ सकते हो, या आप पहले कर सकते हो ताकि बाद में उसकी जरूरत ना पड़े। चौथा, स्लैकर, मतलब Q4 को कट करना है। जो नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज हैं उसको, ये देखो मैंने आपको एग्जाम्पल सिर्फ दिए हैं, डिसाइड आपको ही करना है आपके लिए क्या अर्जेंट है क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं नहीं बता सकता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट अर्जेंट जो है वो मैं जानता हूँ, आपके लिए जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट है वो आप जानते हो। तो यू आर दी बेस्ट जज। आप कभी कभी एक्टिविटी करो, हफ्ते में भी एक बार करोगे तो स्टार्ट विद, आपको जरूर इसमें मजा आएगा, फिर आप करने लगोगे। आई थिंक दैट्स इट। प्रेजेंटेशन पर्पज से इतना ही था हमारे पास। आई थिंक दिस शुड हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम इन अ प्रॉपर मैनर। आप और सोचिएगा अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। आई थिंक दिस सेंसिटाइजेशन विल हेल्प यू टू गेट अ मैक्सिमम ROI ऑफ योर टाइम। अगर टाइम है किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोचो कि उसका रिटर्न कितना आपको मिलेगा। आपको अगर मैं 86,400 रुपये दूं तो आप कौन सी पॉलिसी में लगाओगे? 100 रुपये लगाने से 120 रुपये आते हैं, या 100 रुपये लगाने से 80 रुपये आते हैं, या 100 रुपये लगाने से कुछ भी नहीं आता है? अगर आपको कल को किसी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना है, राइट, प्रदीप इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको इन्वेस्ट करना है, और प्रदीप सर आपको इंश्योर करते हैं कि 100 रुपये आप लगाओ आपको 40 रुपया वापस मिलेगा, तो कितने लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें? कितने लोग ऐसी पॉलिसी में पैसा लगाएंगे कि पैसा ज्यादा लग रहा है लेकिन रिटर्न कम आ रहा है? कोई करेगा? बोलिए। 100 लगाने से पैसा कम मिलता है, कोई इन्वेस्ट करेगा? कोई भी नहीं करेगा। देवराज बोला एक पैसा नहीं लगाएंगे सर, क्या बात कर रहे हो आप? कोई भी नहीं। करेक्ट है ना? हाँ, कोई नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा यार, राइट। 100 रुपये लगा के अगर 10 रुपये मिलता है तो मैं थोड़ी लगाऊंगा। बट आप सोचो हम अपने टाइम के साथ क्या करते हैं? ऐसा करते हैं क्या कि हम इतना अगर किसी चीज में टाइम देते हैं, तो टाइम इज मनी अल्टीमेटली ना। आपको टाइम का पैसा लेते हैं बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सबको, हमको भी टाइम का पैसा मिलता है। हमको 9 घंटे गिन के काम करने का पैसा मिलता है, राइट। और सबको मिलता है, जो लोग, जितने लोग स्क्रीन में बैठे हैं, एक एक मिनट का हिसाब होता है हमारा, राइट। ऐसा बोलते हैं कि जो बिल गेट्स हैं, अगर बिल गेट्स का अगर $500 या $100 का नोट गिर जाए तो उसको उठाएंगे नहीं। मालूम क्यों? उतने टाइम में वो $500 से $700 कमा चुके होंगे, इतनी उनकी अर्निंग है। तो दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो जितने टाइम में उठाने जाएंगे उतने टाइम में उससे कई गुना कमा चुके होंगे, तो वो पैसा नहीं उठाएंगे वो,
राइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना जरूरी है। अगर आपको 86,400 रुपए दिए जाते हैं तो आप कौन सी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करोगे, उसमें कितना रिटर्न आता है। कुछ मैं डेटा देता हूँ आपको, राइट, आप सोचिएगा। इतना पैसा है उनके पास कि बिल गेट्स के पास, कि सारा पैसा अगर हम $1 में कन्वर्ट करेंगे, राइट, और $1 के नोटों को एक के पीछे एक जोड़ते चले जाए हम, तो हम मून तक जा सकते हैं, वो भी 7 बार। अगर एक एक डॉलर के नोट को आपस में जोड़ते जाएं, इतना पैसा है, राइट। अगर वो आज से सोच लें कि आज से हमें कुछ कमाना नहीं है, आज से सिर्फ खर्च ही करना है, और रोज मिलियंस, $15 मिलियन रोज अगर खर्चा करना शुरू करें, तो आने वाले 30 साल तक रोज सिर्फ खर्चा ही कर सकते हैं, उनको दोबारा कमाने की जरूरत नहीं है। सो कुछ एग्जाम्पल्स है आपको बताने के लिए कि मतलब ये कुछ डेटा है, राइट। सो अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपके पास कुछ टाइम है, आपके पास कुछ पैसा है, तो आप उसको ऐसी जगह लगाइए जिससे रिटर्न ज्यादा आने वाला है। 100 का आपको 120 मिले, 110 मिले, कम से कम 100 का 100 तो मिले, राइट। 100 का 0 मिले वो तो मेरे को तो नहीं मालूम ऐसा। और गुजरात में रह के अगर ऐसा मेरे को सीखना पड़े कि 100 लगा के 60 मिलता है, तो मेरा तो रहना ही बेकार है इधर पे। So I think that's it from my side. Any question is there? Most welcome. I hope this will sensitize. Presentation I will share as promised always. Over Thank to you, you. Namrata madam. थैंक यू प्रदीप सर। एक्चुअली जो आपने बात कही सेंसिटाइजिंग की, वो बहुत जरूरी है, और इसको रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। ओनली देन ये अंदर जाएगा, सीप इन होगा। कई बार हमको ये बहुत अच्छी चीज लगती है और बहुत लॉजिकली भी फिट होती है, और हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हम फिर स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं, बहुत सारे मन जो है अपना रूप दिखाता है कि नहीं अभी थोड़ा तो कर लूं, 5 मिनट तो खेल लूं, तो वो 5 मिनट का कब 50 मिनट हो जाता है पता नहीं पड़ता है। सो नाउ आई इनवाइट अभिनंदन सर, भारती मैडम, आमिर सर, one by one, because students are not only reeling through tough time externally, internally also there is some a struggle going on, that how they are juggling with the exams going on. Today they had viva till 4 o'clock, and then again they joined here. So many things are going parallelly in that, this thing. I invite every dean and Abhinand sir to just motivate our students and give them wishes also. Yes sir. Should I start, madam? Yes sir, please. Oh. आप ही इनवाइट करा मैंने। नहीं, that is fine. Actually, I was listening and मैं पूरा खो गया था, जिस तरीके से प्रदीप सर ने पूरी बात की, उसमें मैं खो गया था पूरा. And I was reminding my days when I was also delivering such kind of motivational speeches and this time management and other things. I like your funda that everyone is having 24/7 same time, 24 hours and same second, same time. And I always narrate one incident, one example. कि जो मैकडोनाल्ड का एग्जाम्पल है, मैकडोनाल्ड ने शुरू किया तब वो अकेला एक गांव में अपना वो मैकडोनाल्ड का शॉप चला रहा था, और उसकी सिस्टर के साथ बात की उसने सिटी में जाके, तो उसकी सिस्टर ने बोला कि यहाँ पे आके भी शुरू करो। तब वहाँ पे डील हुई कि जो कमाएगा उसका 2% वो अपने ब्रदर को देंगे, तो पूरी रेसिपी वहाँ पे दी और उन्होंने वहाँ पे शुरू करवाया. So this is what the first franchise business, and that way it has been expanded. Now you can see the person who was working 24 hours a day and was very frustrated कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है. आज वो आराम से घर पे बैठ के पूरी दुनिया घूम रहा है और सारे लोग उसके लिए काम कर रहे हैं. So this is what the idea time management, how you can do in this era, and especially for students. And one more thing I would like to suggest to my students, that please avoid procrastination, because this is the biggest hurdle in your time management. Whatever you have to do, do it at that time. And as you rightly said, urgent and important, you decide your choice and accordingly you have to do. So it is a very, very fantastic topic, time management, and you have narrated very nicely. So I was just thinking about that part only, that how to manage the time and how I can implement most of the things out of your talk, that what to be given importance and what is urgent in my life. Thank you so much. So thank you very much for that. Thank you.
one Thank you, thing I would Vyas. like to say, Namrata ji, Yeah, sure. पूछा है कि how to overcome procrastination. So I'll just take 30 seconds or 1 minute. Sure, sir, If please. you feel like procrastination, so you do one thing. So that's what I suggest. The book is, how Eat That Frog. Eat That Frog says कि आपको जो काम अच्छे नहीं लगते ना, सबसे पहले वो काम करो. और जो सबसे बुरा काम लगता है, सबसे मतलब आपको लगता है तो करना ही नहीं चाहिए, किसने कराया, किसने बनाया, ये किसने सिखाया, उसको सबसे पहले करो. तो ऐसा बोलता है, ईट दैट फ्रॉग एंड ईट द अगलीस्ट फ्रॉग एट द अर्लीस्ट. ईट द अगलीस्ट फ्रॉग एट द अर्लीस्ट. तो आपको रिलीफ मिल जाएगा. जो सबसे डिफिकल्ट आपको लगता है, बिल्कुल चिढ़ लगता है, तो करना ही नहीं है, सबसे पहले उसको कर लो. तो आपकी लाइफ, जो बाकी आपके काम है, आसानी से हो जाएंगे. तो इस तरह से आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हो. प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए बेस्ट तरीका ये है कि जो आपको काम पसंद नहीं है पहले करो, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सबसे पहले करो, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी. ये ईट दैट फ्रॉग में से सर मैंने चुराया है, मेरा कथन नहीं है. जी sir. Over to Bharti madam for her wishes and motivation to students. Yeah. Thank you very much, Namrata madam. You know, it's always a pleasure to listen to Mr. Pradeep. You always learn something new from him. This is, I think, his third address to our university. And each and every time, ourselves as well as our students have learned. And you know, you started your talk with Bhavnagar, my hometown. That is why I like the most. You talked about Amit Andharia, the person who is very close to our family. So today, when you call him, just convey my regards to him. A very good person, you should say. Actually, I'm a very bad time manager, I should confess. And when I'm overstressed with, usually, do not get sleep at night. So today I came to know, okay, you should, manage your time very effectively, differentiate between things which are urgent and which are important. So we have also learned a lot from your lecture today. I think the students have also learned the most, because this time also they would be facing MCQs, which they would have to complete online within a very short time. And then they would have to differentiate between the questions which they immediately they are able to answer, and certain questions in which they have certain doubts. So within that also, seeing to this, they would have to differentiate. And I wish the students all the very best. Their practical examinations are also almost to an end. We would be completing by this Saturday. So I hope hearing today's lecture, you are out of the stress of all this COVID things that you are hearing. I'm getting phone calls from the parents. My son and daughter is suffering from COVID. He lost his father 10 days back. So listening to such type of lectures would really relieve the students of all these stress and complications. Thank you very much. Thank you, Bharti. Abhinan sir says that net is unstable, but still, sir, we would like to hear from you. Last so many times, today morning also during some interview process, the net was highly unstable. I don't know why, But anyway, it was great listening to Pradeep as usual, because he comes with a power punch, whatever topic he is coming up. And that's where I like him as a good mentor to our kids. They must listen. Positivity has to be there. So I would like that you have to blossom the flower of positivity now. And that's where you look at the Indrashil University's symbol. It is blossoming, flower. So we must come up with that part. And all the students, keep safe, wear mask, keep social distance, get vaccinated. I would like to see your photograph on Facebook of Indrashil University with vaccinated. I got vaccinated, tag it. Sir, I would like to see all of you. Yes, I have already asked them. Click the photos and give it to me. Send it to me. Yeah, let me see how many of you are coming. Yeah, we will make the collage and we'll, propagate. Yes, no, let them all come and tag it in Indrashil University on their Facebook page. Let's see. Yeah, tag it. Vaccine warrior. Yeah, most of them are, sir, very active on Instagram. So even that is possible. Instagram also, whichever post is there, but सबको देखना चाहूँगा. And बद्धा ने हम कही कि let's get vaccinated. That's how we'll see you in the campus. True, sir. That's where I'm looking. Everybody smiling. Campus now, we have to fight with the corona. Let it go away, and we are there in the campus. Thank you so much, Abhinan sir, for these words, kind words.
एंड मुझे कभी कभी लगता है कि टाइम को मैनेज करना है कि हमको अपने को मैनेज करना है. टाइम तो जा रहा है और जो हमारे काम है उनको हमको मैनेज करना है टाइम के अकॉर्डिंग. सो कभी कभी ये लगता है कि हम टाइम को भी बांधने की कोशिश करते हैं जबकि वो बनता नहीं है. बट इट इज गुड कि जो मैट्रिक्स आपने बताया तो कैसे हर एक क्वाड्रेंट को आप खाली करते चले जाएं. यू कैन मैनेज things very orderly and disciplined manner and still be successful. So now it's time for Shipra to tender vote of thanks. Shipra, you can. That is what the power punch is. Samay balwan hai. Ji sir. Shipra, you can unmute yourself. Yes, ma'am. Am I audible? Yeah, please. Good evening, respected Pradeep Singh sir and all the respected faculty members and my friends. Myself Shipra Pandey from MSc Microbiology second semester, and I'm here to deliver the vote of thanks. I would like to thank Pradeep Singh sir on behalf of all the students and Indra University for giving us this precious time from his busy schedule and taking time to guide and motivate us in an amazing way. I would also like to thank Indra University and all the faculty members for lending us this opportunity to learn from Pradeep sir. Thank you, sir, for making us understand the real value of time and how important it is to manage this precious time in our lives, and also reminding us the COVID precautions and updates. As sir highlighted that the major difference between the urgent and important activities in our lives to be prioritized and to manage our 86,400 seconds. By giving us the formula of SSS, that is shrink, schedule, and slacker, to maintain or to manage and the opportunities. Thank you, sir, for these lessons. We'll make sure we make the best use of our time and link it towards a better future. Thank you. At the end, I will just like to say all the best to all students and for appearing for examinations in the Viva. What I can give you a few quick tips is whenever you go for Viva, take a deep breath, wait for 30 seconds and go with the full confidence. Whatever you know is always correct, absolutely correct. So whatever comes to your mind, it's 100% correct and 100% right. You are if you don't know, no one else know in this world. So go with that kind of confidence and deliver. And you will be a very good, So I wish all the best. I wish all the best. Sarve bhavantu sukhna, sarve santu narameha, sarve bhadrani pashantu ma kashit dukh bhag bhavet. इन शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूँ. Over to you, Namrata ji. Thank you so much, Pradeep sir, for the wishes. Shipra, very well said. And I'm happy that our deans are here. Abhinan sir is there, and he is the one who is instrumental again pushing us, to come back with the Turning Point series without, having longer pause and resume, to again twist and turns, because this is the time, where we require something beyond classroom studies also. So thank you, Abhinan sir, once again for this. And Pradeep sir and I will be in touch with you, sir, because we have, someone else at the helm of L&D. Pradeep sir will brief you, and we'll have the group wherein we can identify speakers, and it will be pre-decided before we come to this relay. And I'll also request both the deans that if they can, keep slot for us, keeping in mind this exams also. So at a common slot of common consensus, so that, we can relay it without any hassle and everyone participating in that. Thank you. Thank you, students. All the best. Thank you, everyone.